Good morning, everyone. I hope you all are doing good. In previous week, we solved some questions from exercise 9.4. Today, we will continue from where we have left. So, we will do next question of exercise 9.4, which is question number 7. Now, what does question number 7 say? Question number 7 says that a car was bought for rupees 65,000, which means the cost per price of car is 65,000. Now, and sold at a loss of 15%. It is sold at a loss of 15%. What price the car was sold? So what you have to find? You have to find out the selling price of the car. So for this you need to know the formula for loss percent. The formula for loss percent is CP minus SP upon CP multiplied by 100. Fine. Now we know the loss percent is 15. Cost price is 65,000 minus selling price is we do not know. Cost price again is 65,000 multiplied by 100. Now what you will do, you will multiply this with 15. So 15 into 65,000 is equals to 65,000 minus selling price multiplied by 100. Now since this is in multiplication, this will come in division also. 15 into 65,000 divided by 100 is equals to 65,000 minus SP. So zeros से zeros cancel हो जाएंगे. Multiply 65 with 15. 5 5 are 25, 6 5 are 30, 32 and 5 6. So this is 5 7 9. 975 और एक जीरो इधर है तो ये बन जाएगा 9750 is equals to 65,000 minus SP. इसको हम इधर लेके आएंगे और इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 65,000 माइनस 9750. जीरो से जीरो गया तो जीरो, इधर 10 इधर 9, 4 का 14 और इधर 5. तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 14 में से 9 गया तो 5 and 5. So the selling price of the car is rupees 55,250. What we did was simply पहले हमने लिखा जो हमें दिया हुआ था, उसके बाद हमने लॉस परसेंट के फॉर्मूले में डाला और हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is a property dealer sold a plot which cost him 35,000. So the cost price of the plot was 35,000 at a gain percentage of 5%. Gain का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट. तो उसने 5% के प्रॉफिट पे अपनी जो प्लॉट था वो बेच दिया. So you have to find out the selling price of the plot. Now you have to, for this you have to know the formula for profit percent. Profit percent का formula होता है selling price minus cost price upon cost price into 100. Profit percent is 5. Selling price we do not know. Cost price is 35,000 upon 35,000 into 100. मल्टीप्लाई कीजिए. 5 into 35,000. ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू SP माइनस 35,000.
जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, 35 इंटू 5 कीजिए, 5 5 से 25, 5 से 15, 16, 17, तो ये बना 1750 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस 35,000. सो दिस इज 1750, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 35,000 is equals to selling price. So selling price is 35,000 plus 1750. Add कीजिए 5 7 6 3 6 750. So the selling price of plot is rupees 36,750. Now moving forward to question number 9. Question number 9 says Mary brought an old computer for rupees 10,500. So the cost price of computer is 10,500 and she sold it to Rosie at a loss of 10%. तो उसने कितने लॉस पे बेचा? 10%. Now what you have to do? Find out the selling price of the computer. You have to find out the selling price of the computer. So the formula for loss percent is cost price minus selling price upon cost price into 100. So the loss is 10%, cost price is 10,500 minus selling price upon cost price again, which is 10,500 into 100. ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा. 10 इंटू 10,500 अपॉन 100 is equals to 10,500 minus selling price. ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये आया 1050 is equals to 10,500 minus SP. ये इधर आएगा, ये इधर आएगा. So selling price will become 10,500 minus 1050, which is minus करो कितना आएगा? 10,500 minus 1050. 0, ये 10, ये 4, ये वापस 10 and ये 0. So 9450. So selling price of computer is rupees 9,450. Fine. Now moving forward to question number 10. A merchant brought 15 dozen pens at rupees 16 per dozen. कितने डजन पेन खरीदे? डजन, number of dozens of pens he brought. कितने डजन पेन खरीदे उसने? 15 डजन. Cost of each dozen. हर डजन की कॉस्ट कितनी है? ₹16. ठीक है. नाउ सो हम अगर सारे पेन्स की कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ 15 डजन पेन्स इज 16 इंटू 15. 16 इंटू 15 कीजिए. 6 5 30, 5 1 5, 6 7 8, 6 1 6, 1 1 1, 0, 8 and 6 14, 240. So for rupees 240 he bought 15 dozen pens. Now number of pens in 15 dozen.
15 दर्जन में कितने पेन होंगे? 15 इंटू 12। क्यों भाई 15 इंटू 12 क्यों किया? क्योंकि एक दर्जन में 12 पेन होते हैं। सो 15 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 180। फाइन। तो therefore 180 pens were brought for rupees 240. ठीक है। Now he says he sold them at rupees 2 each. अब उसने हर पेन कितने रुपए का बेचा? 2 रुपए का। तो अगर आपको क्या निकालनी है? आप सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल विच इज 180 पेन्स इज ₹2 इंटू 180 दैट इज 360। मतलब उसने 360 रुपए में सारे पेन बेच दिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो देखो पहले ये तो पता लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। देखो उसने 240 रुपए में खरीदे और 360 रुपए में बेच दिए, तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। नाउ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 360, कॉस्ट प्राइस इज 240, तो 120 रुपीज का क्या हुआ है? प्रॉफिट। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ? 120, कॉस्ट प्राइस था 240 इंटू 100। 0 से 0 गया, 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, तो उसे 50% का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्वेश्चन को वापस समझते हैं। एक शॉपकीपर ने, एक मर्चेंट ने 15 दर्जन पेन खरीदे 16 रुपए एक दर्जन के हिसाब से। मतलब एक दर्जन के उसने दिए 16 रुपए, तो 15 दर्जन पेन के उसने कितने रुपए दिए होंगे? 15 इंटू 16 240 रुपीज दिए उसने 15 दर्जन पेन के। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि एक दर्जन में कितने पेन होते हैं, मतलब 15 दर्जन में कितने पेन होते हैं। तो एक दर्जन में हमको मालूम है 12 पेन होते हैं, तो 15 दर्जन में कितने होंगे? 15 इंटू 12, तो आ गया हमारे पास कि 180 पेन उसने 240 रुपए के खरीद लिए। अब बोला उसने कि उसने हर पेन 2 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 180 पेन थे और कितने रुपए में बेचे? 2 रुपीज ईच, तो उसने 360 रुपीज के सारे पेन बेच दिए। तो उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। जब उसने 240 रुपए के खरीदे थे और 360 रुपए के बेचे हैं, तो उसे प्रॉफिट ही होएगा। प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके प्रॉफिट निकाल लिया, और फिर हमने क्या निकाल दिया? प्रॉफिट परसेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 says the selling price of an article is double its cost price. Selling price cost price की दुगनी है, तो let us take cost price to be x मान लेते हैं हम cost price को। अगर cost price ₹x है तो selling price ₹2x है, क्योंकि डबल है ना। अब क्या है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अब बताओ अगर मैंने x रुपीज में खरीदा और 2x दुगने में बेच दिया, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस इज 2x minus cost price is x upon cost price is x into 100. So 2x minus x is x upon x into 100. x से x कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो शॉपकीपर है
या जो भी मर्चेंट है उसे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 100% का। जैसे उसने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और बेच दी 20 रुपए में, देयरफॉर देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 100%. Now this is all we are going to do today. Your homework is you have to revise classwork twice with writing. लिख के आपको 2 बार क्लासवर्क रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लास। मेक श्योर यू ज्वाइन योर लाइव क्लास रेगुलरली सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस और आपको जो भी डाउट हो वो क्लियरली सॉल्व हो जाए, ताकि आपको कुछ डाउट न रहे और आपके लिए पढ़ाई करना इजी हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।